Hello students, today we are going to start our first chapter of biology of class 9th science, which is the fifth chapter of the NCERT science, and the chapter is the fundamental unit of life. What we will learn in this chapter, that what is the fundamental unit of life, what are the components and what are the functions of these components. So let's start the chapter. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of the honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree, and this was the year 1665 when the Hooke made this chance observation under the self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells, and the cell is the Latin word for a little room. इस पैराग्राफ में पूरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक चांस ऑब्जर्वेशन की, और चांस ऑब्जर्वेशन उन्होंने किस में की थी? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उन्होंने ये चांस ऑब्जर्वेशन की। और ये चांस ऑब्जर्वेशन उन्होंने किसकी की थी? बार्क ऑफ अ ट्री में जो कॉर्क प्रेजेंट होती है उस कॉर्क की इन्होंने चांस ऑब्जर्वेशन की सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर। और उस कॉर्क में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें छोटे छोटे जो हनीकॉम्ब में जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से उन्होंने ये कंपार्टमेंट्स कॉर्क में ऑब्जर्व किए। और इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। और जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटल रूम। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि it is very small and insignificant incident, बहुत छोटा सा इंसिडेंट था ये, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। और ये जो सेल की डिस्कवरी थी ये फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व की थी। और ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला था कि जो लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, तो और जो यूज़ है हमारे इस वर्ड का सेल का, ये आज भी हमारा बायोलॉजी में यूज़ होता है। वट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं ये शो करने के लिए। लेट अस take a small piece of from an onion bulb. With the help of a pair of forceps we can peel off the skin, which is called epidermis, from the concave side, that is the inner side of the onion. This layer can be put immediately in the watch glass containing water, and this will prevent the peel from getting folded or getting dry. Then what do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of iodine solution on this piece followed by a cover slip. तो इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, हम ऑनियन का एक छोटा सा पीस ले लेंगे और उस छोटे से पीस का हम जो इनर साइड में जो स्किन होती है उसको हम निकाल लेंगे, और उसको हम किस में डाल देंगे? एक वॉच ग्लास में डाल देंगे जिसमें पहले से ही पानी प्रेजेंट है। उसमें हम पानी में क्यों डालेंगे इसको? ताकि वो ना सूखे और ना ही वो फोल्ड हो। उसके बाद हम एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, और उसके बाद हम जो ऑनियन पील लिया है, ऑनियन पील को हम छोटा सा कट कर लेंगे, और उस जो कटिंग पीस है उस पीस को हम ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम उसके ऊपर एक आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, और उसके बाद हम उसको विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप उसको कवर कर देंगे। देन
Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope. उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जब हम कवर स्लिप से कवर स्लिप से जब हम कवर करेंगे ऑनियन पील को, तो हमें थोड़ा सा केयर रखनी है कि उसमें एयर बबल्स ना बने। तो और ये हमने किसकी हेल्प से रखना है, जो कवर स्लिप है वो एक माउंटिंग नीडल के साथ रखना है, और उसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसको What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Does it look like? Yes, we can observe under the microscope these structures. These structures are the cells when we see under the microscope, and this is the single cell. This is the single cell under the microscope when we see the onion peel temporary slide. जब हम अलग अलग साइज़ के ऑनियंस लेंगे और उनके पील्स की टेम्प्रेरी स्लाइड बनाएंगे, तो हमें जो साइज़ ऑफ सेल है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा, जब हम ऑनियन लेंगे तो उसमें सेल का साइज़ बड़ा होगा, या फिर जब हम छोटे साइज़ का ऑनियन लेंगे तो उसमें सेल का साइज़ छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ये सब में जो सेल का साइज़ है वो सेम रहता है। साइज ऑफ द सेल विल बी सेम इन ऑल द ऑनियंस। Then what are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structures like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. The small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. तो जो ऑनियन के स्लाइसेस हैं, जब वो सारी की सारी एक साथ मिल जाएंगी तो पूरा ऑनियन बल्ब बना लेती हैं। इसी तरीके से जब ये सिंगल सेल मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट रीड करेंगे। देन वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिफरेंट साइजेस के ऑनियंस हैं, चाहे आप छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, लेकिन उसमें जो सेल का साइज़ है सब में एक जैसा ही रहेगा। ये नहीं है कि बड़े ऑनियन में आपका सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और छोटे ऑनियन में आपका जो साइज़ ऑफ सेल है वो आपका कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. The small size, these small structures that we see are basic building units of the onion bulb. जैसा हमने पीछे स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ये जो आपका जो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी इसकी ऑनियन बल्ब की, हमने टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी, तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। मीन्स आपके जो ऑनियन बल्ब है, ऑनियन बल्ब हमारा छोटी छोटी हमारी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, सेल। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनियन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से बना होता है। सारे के सारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप ऑर्गेनिजम्स देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो आपका कैट है, क्रू है, आपका जो भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने होते हैं, आपके सेल से मिलके बने होते हैं। और देन हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लाइव ऑन देयर ओन। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ पे। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम आगे रीड करेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Then cells were first discovered by the Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope.
Leeuwenhoek in 1675, with the help of improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल डिस्कवर की थी, जो क्योंकि जो कॉर्क होता है, कॉर्क इज द डेड सब्सटेंस। और फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। आफ्टर दैट जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जो सेल में के सेंटर में प्रेजेंट होता है। Perkinge in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by the two biologists Schleiden in 1838 and Schwann in 1839. परकिंज ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, दैट इज़ द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। एंड द सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो किसके बने होते हैं, दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये किसने कहा था, ये स्क्लेटिन और श्वैन ने कहा था इन 1838 और 1839। The cell theory was further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all the cells arise from the pre-existing cells. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structures of the cell and its various organelles. जो सेल थ्योरी दी थी स्क्लेटिन और श्वैन ने इन 1838 और 39 में, उसके बाद उस सेल थ्योरी को जो विर्को थे उन्होंने एक्सपेंड किया था, मीन्स उन्होंने कुछ और पोस्टुलेट्स भी उसमें डाले थे। तो वो कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं, सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं उन वो कहाँ से आती हैं, जो पहले सेल्स एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं से नई सेल बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबल हो गया था कि जो हमारे सेल है, सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that the single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organisms, and on the other hand, many cells group together in a single body that assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms, such as some fungi, plants and animals. जैसे इन्होंने बोला है कि जैसे क्लैमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है एंड अमीबा है, दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और सारे के सारे जो भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो एक सिंगल सेल में ही होती है। सो यूनि मीन्स सिंगल, तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड क्या ये बोलते हैं कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। जैसे आपका फंगी है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंगल सेल से ही बनते हैं। जो सेल थ्योरी है वो भी क्या कहते हैं कि जो सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आपका जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, और जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होती है और अपने ही जैसी आगे जो सेल्स है वो प्रोड्यूस करती है।
दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, फैट सेल है, आपकी बोन सेल है, स्पर्म सेल है एंड ओवम है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। The shape and size of cells are related to the specific function they perform। जैसा सेल का शेप होगा और साइज़ होगा वैसा ही वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो अपना शेप चेंज कर लेती है, जैसे अमीबा है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें उनका जो शेप है वो फिक्स होता है एंड पिक्यूलियर फॉर फिक्स्ड टाइप ऑफ सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो शेप है वो पिक्यूलियर होता है, मीन्स फिक्स होता है। जैसे आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हर एक जो लिविंग सेल है वो अपना एक जो बेसिक फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने की कैपेसिटी उसके पास होती है, दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। कैसे जो लिविंग सेल्स है वो अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाती हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हाँ, जैसे हमें पता है कि जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, जैसे उनका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उन हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्या है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। एंड अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, और जो स्टमक है वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है एंड सो ऑन। Similarly, division of labor is also seen within a single cell in many cases। और इसी तरीके से जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। In fact, each such cell has got certain स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनली। और जैसे सेल्स होती हैं, सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। और इस तरह की जो सेल्स होती हैं इनमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो ये अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाती है। और इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे, दैट आर नोन एज सेल ऑर्गेनली। ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। हर एक जो ऑर्गेनली है वो उनका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। जैसे कोई ऑर्गेनली होगी जो सेल में न्यू मटेरियल पर बनाएगी। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। और कोई ऑर्गेनली ऐसी होगी जो सेल में जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करेगी सेल से एंड सो ऑन। अ सेल इज़ एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनलीज। और एक जो सेल होती है वो अपना जो फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है और वो रह पाती, वो जीवित रह पाती है, वो इन सेल ऑर्गेनलीज की वजह से ही अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है। दीज ऑर्गेनलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और ये जब सारी की सारी ऑर्गेनलीज मिल जाती हैं आपस में तो ये एक बेसिक यूनिट बना लेती हैं जिसको हम सेल कहेंगे। It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। और जितने भी सेल्स होते हैं सभी सेल्स में जो ऑर्गेनलीज होती हैं सभी ऑर्गेनलीज का सेम फंक्शन होता है, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस सेल का क्या फंक्शन है। ठीक है, सभी सेल्स में एक तरह की ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं। और ये भी कोई मैटर नहीं करता कि व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, कि जो ये सेल्स हैं ये किस ऑर्गेनिज्म की हैं, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। चाहे वो सेल आपकी डॉग की है, कैट की है, पिजन की है, एलिफेंट की है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैं, सभी सेल्स में एक तरह की ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं और सभी ऑर्गेनलीज का जो फंक्शन है वो सबका सेम होता है।